a very, very special evening for which all of us have gathered here today. I would also request all of you who are seated at the back, if you would like to join us ahead, up in the front, you're most welcome. We are, of course, here today to celebrate 20 years of existence of Haripatti. I welcome all of you. And can you once please put your hands together so that we create some noise in the house and a whole lot of energy? There have been a few who have been here since 6 p.m. An extra special applause for all of them because they've been waiting very long. Once again, just put your hands together and let's have some noise here. Thank you. I think Haripatti is like a family to many, many people who are seated here. So here is a welcome to all friends, all family who've been trusting Haripatti for so long and who've also been benefiting along with it. And it is just nice to see all of you here. I wouldn't like to take a lot of your time because the correct spokesperson for this evening is seated right here. Her name is Gurleen. And Gurleen ma'am, before you come, I don't know how to give your introduction because with this smile you handle such complex things. But Bashir Badri साहब ने कहा था कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. Ma'am started very early when she took on the reins of this company, but she has been flowing ever since with it. Ma'am, on the stage, and please take us through the journey of Haripatti. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा. पापा, ये आपके लिए है. आज जो है मेरे पास उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है. All my work and recognitions are dedicated to my father, whom many of you know and have worked with. He left very early at 47. आज 20 साल हो गए हैं. जो मेरी झोली में आया उसके लिए मैं तैयार नहीं थी. Especially not when I was 21. Already had a 5-month-old baby in my lap. Papa, Shri Trilok Singh Ji was not only the financial advisor of many families, but also someone his clients looked up to for personal advice. With his hard work, intelligence, dedication and empathy, he created an excellent name for himself in the insurance industry, winning many accolades year after year. But the best award he won was a place in the hearts of his clients with his right advice and great service. पापा कहते थे, जब किसी की डेथ होती है तब 100 लोग पैसा मांगने आते हैं. बस एक इंश्योरेंस एजेंट ही है जो पैसा देने आता है. It reminds me that just 10 days ago, we got one personal accidental death claim of 2 crores approved. Needless to say, the legacy continues. It was his vision that I was admitted to Shahid Sukhdev College of Business Studies, known to many as CBS. I completed my bachelor's in finance and investment analysis, और मेरा एक ही सपना था MBA करनी है और जॉब करना है Big 4 में. पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. Today, when I look back, I smile through the way my life has taken me. But let me tell you, आसान नहीं था, कुछ भी आसान नहीं था. But yes, my mother, my husband, and my kids. And आप सबने आसान बना दिया. उसको with your support and kind words. शायद उसी का नतीजा है that today I am called not only for new investments or an upgrade in your health insurance, but also आपके घर की celebrations as a family member. In the last 20 years, we have kept moving from strength to strength, learning every day, adding new products, tying up with agencies, investing in our team, investing in technology, investing in service, and investing in bigger office spaces every 5 years. Today, we are happy to tell you that we have more than 3,000 families associated with us for their investment and insurance portfolios. In 2017, we were very clear that we wanted to move to a paperless office. ये काफ़ी बड़ा टास्क था ध्यान रखते हुए एज मोस्टली हमारे क्लाइंट्स 45 प्लस एज ग्रुप के थे जिनको कुछ नई चीज़ सिखाना काफ़ी मुश्किल था. बट वी हैड अ डेडिकेटेड टीम मेंबर गाइड देम एट एवरी स्टेप. जब 2020 में कोविड आया, वी हैड ऑलरेडी मूव्ड 85% ऑफ आवर वर्क टू पेपरलेस. एंड आई स्टिल रिमेंबर मेनी ऑफ यू कॉलिंग मी एंड सेइंग थैंक यू फॉर द पेपरलेस शिफ्ट. 2020 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की क्वेरीज बहुत बढ़ गई. माई हस्बैंड टिक्कू जी saw me calling different people and explaining the same product. फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि सेम ही बात बोलनी है सबको, then why not create a video and send to all. मैंने सोचा why not, and then start हुई हमारी वीडियोस बनाने की जर्नी और ये था हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट. It made my work and our customers' lives easier too. कब वो 100 लोगों के लिए बनाई हुई रील
या वीडियो लाखों करोड़ों तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। Today we are followed by 6 lakhs people with a lifetime view of 15 million and the love that we have received is unexplainable. लव की बात में बस बिजनेस ही नहीं बोल रही, लव में थैंक यू आते हैं। As we not only educate them about insurance and investments, but also help them in taking right and informed decisions so that they don't fall prey to mis-selling. So हमने एक knowledge platform बनाया है and we receive hundreds of calls daily. My able team and I help them navigate to the right path. Today we are happy to share that our Haripati family is not restricted to part of Delhi, but also to North India, East India, South India, West India, India as a whole, Asia as a continent, and the entire world. Many are watching us live right now on their screens also. We thank you all. Thank you, आप सबका. Ma'am, congratulations. There were such moments of pride there that I couldn't stop smiling along with you. Many congratulations to what Haripati has achieved. I think 20 years of a lot of love, 20 years of a lot of trust, and 20 years of so much gratitude. They all come to you, they all come to your family. And of course, I must not forget that the sponsors for this evening are Nippon India Mutual Fund and DSP Mutual Fund. This event is supported by NJ Wealth. All right, moving on. So we have a very special talk right now on personal finance and investments by someone who is the co-founder and CEO of RestroWorks, who's an angel investor of 50 plus startups across the globe. But what I was hearing in this hall was that he is one of the best entrepreneurs that the country has seen, and also the fact that he's a Marwari. And Marwariयों से आप पैसे की बात करें ना करें, सुन जरूर लेनी चाहिए, because उनका कुछ अलग रिश्ता होता है पैसे से. Of course, I'm talking of a dear friend of this entire family which has gathered here, Ashish Tulsian. Can we please have you on the dais? Thanks to all of you. सौम्या जी ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जिसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, तो बेस्ट हैं या नहीं हैं, एंटरप्रेन्योर ज़रूर हैं और सभी को पता है कि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा स्ट्रगलिंग होते हैं. अगर वो स्ट्रगलिंग नहीं होते तो फिर वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते. सो Gurleen, Tikku ji and the entire family, thank you. I think I had such goosebumps while watching that video and listening to you. बहुत सारे businesses इस दुनिया में 10 साल पूरे नहीं करते हैं. 0.1% companies, businesses that start, they cross a decade alive. I don't have the stats of how many of them cross 20 years. But 20 years cross करने के लिए, the minimum requirement is that the value system of a business has to be in place more than the business acumen. And this is not something that I would appreciate as an entrepreneurial wisdom. Business शुरू करने की wisdom के बारे में बात करते वक्त बहुत सारे लोग value system की बात नहीं करते हैं. पर मैं ये बात मैं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी रन कर रहा हूँ. It's been 13 years for us. And मैं ये बात पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोच सकता हूँ और आपकी जर्नी और आपकी सक्सेस में इस बात की गारंटी दे सकता हूँ दैट अगर बिजनेस में वैल्यू सिस्टम नहीं है, अगर आप ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी को फॉलो नहीं करते हैं एज अ बिजनेस, एज अ टीम, एज अ कंपनी, तो ये सब हो ही नहीं सकता. So big round of applause for Gurleen and the family. This is, and plus on top of it, आप ऐसी वाली दुनिया में जहाँ पे फाइनेंस और इंश्योरेंस और फाइनेंस कंसल्टेंट्स वाले वर्ल्ड में unfortunately money, the business of money is dirty. So I think building a name in an industry which is known to not give the best of the advice at times because they have vested interest is a great feat. आप सभी के मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, but I will, जब गुरलीन ने मुझे बोला कि I need to address this was a lot of pressure because मैंने बोला कि गुरलीन, जब मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो उनसे बात करना बहुत आसान है, वो गरीब हैं, तो उनको देनी है उम्मीद, उनको बताना है कि बिजनेस कैसे बनाना है. I said आप बात कर रहे हो कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, I said ये तो बना चुके पैसे, इनसे मैं क्या बात करूँगा, ऐसा क्या बता सकता हूँ मैं इनको जो इनको ऑलरेडी नहीं पता है. तो देन आई थॉट कि अपने फेलियर्स
से सीखना थोड़ा सबसे आसान काम होता है. तो आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू what I have learned in last 18-19 years of running, business. Some of that wisdom actually comes from being a Marwadi. I learned it reverse. Actually बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में थी जो मुझे पता थी, पर मुझे ये नहीं पता थी कि ये रूल्स हैं. मुझे लगता था कि ये पापा ऐसे करते हैं, दादाजी ऐसे करते थे, हमारे घर वाले ऐसे करते हैं, पर मुझे हमेशा लगता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये तो कोई सही बात नहीं है. Only after I went in the world, I saw the world, I started understanding people and their relationship with money, their relationship with time. I started understanding their relationship with earning and their relationship with investment. I started understanding कि वो रिश्ता पैसे से कितना खराब है, वो रिश्ता अर्निंग से और इन्वेस्टमेंट से कितना खराब है. तब मुझे रिवर्स में बहुत चीज़ें सीखने को मिली जो I think some of them govern my life pretty well and some of them I'm still trying to emulate. Let's talk about money. We are at Haripati. I think what I've learned in life is that जिंदगी में दो ही तरह के रिसोर्सेज हैं, एक पैसा और एक समय. इसके अलावा कोई और ऐसा रिसोर्स नहीं है जो जिसके लिए हमें काम करना पड़ता हो. बाकी सारे रिसोर्सेज इन्हीं दो रिसोर्सेज से खरीदे जाते हैं. जिंदगी में जब पैसे कम होते हैं तो समय ज़्यादा लगता है इच्छाओं में, काम में, और जब समय कम होता है तो हम पैसे ज़्यादा देते हैं तत्काल और दो नंबर और जल्दी और वीआईपी लाइन और ऑल एनीथिंग दैट इज associated with speed costs money, including our cars. One thing that I have learned about this equation of money and time is that the costlier resource is time. क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, समय कमाने का कोई तरीका नहीं है पीछे मुड़ के. किया हुआ नुकसान वापस आ सकता है. मैंने बहुत नुकसान किए हैं और वो सारे पूरे हो गए, मैंने उससे ज़्यादा कई गुना कमा लिया. पर जो समय कभी कभी मिस हुआ, उसको जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो मुझे इंस्पायर करता है आगे समय ना खोने के लिए. माई लर्निंग विद टाइम हैज़ बीन दैट जब हम जिंदगी में स्टार्ट होते हैं तो हमें अपना समय इस्तेमाल करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी लाता है, हमारा मीन्स है वो. पर जब ज़िंदगी में कुछ पैसा आने लग जाए तो अपने ही पैसे को इस्तेमाल करके अपना समय खरीदना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली काम है. Most of the world is not miserable because they don't have money, and I'm talking about people who have money, and we are all blessed. I think अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो आप गारंटेडली पैसे वाले लोगों से तो सराउंडेड हैं, पर उन सभी के पास एक चीज नहीं है, वो है टाइम. उसका रीजन है कि वो अपने ही पैसे से अपना समय खरीदना भूल गए हैं. जब हम ड्राइवर की बात करते हैं, जब हम अपने सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं, जब हम अपने असिस्टेंट्स की बात करते हैं, जब हम अपने घर में हाउस हेल्प की बात करते हैं, हमारे आसपास कितनी सपोर्टिंग लोग हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, आई फील वेरी फनी when I see people negotiating their salaries, when I see people talking about कि क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है उसकी. और मैं हमेशा देखता हूँ कि वो कॉन्टिन्यूसली इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको इतना पैसा क्यों दें, इसका इतने पैसे की क्या जरूरत है, ये काम तो भाग के मैं कर लूंगा, ये काम तो भाग के मैं कर लूंगी. पर रियलिटी इज दैट फॉर मी वन वे टू बाय योर ओन टाइम इज टू सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्ट दैट यू कैन अफोर्ड टू फ्री अप योर टाइम टू डू समथिंग वर्थ वाइल विद इट. और अगर आप वो कुछ वर्थ वाइल ढूंढ सकते हैं उस समय के लिए, तो स्पेंड दैट मनी ऑन यू वेरेवर यू कैन इन मिड एंड लेटर पार्ट्स ऑफ द लाइफ एंड बाय योर टाइम. दूसरी विजडम, पैसा बनाना, पैसा जोड़ना और पैसा बढ़ाना, ये तीन अलग अलग काम हैं, ये तीन अलग अलग स्किल सेट हैं, इन तीन के अलग अलग टेम्परामेंट हैं. और ये बात मुझे लाइफ में काफ़ी लेट समझ आई कि पैसा बनाना अलग प्रॉब्लम है, जोड़ने के लिए एक अलग सोच समझ ठहराव चाहिए, और इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल ही अलग साइंस है, उसका तो बनाने और जोड़ने से कोई लेना देना ही नहीं है. एंड जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आपकी जिंदगी में जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, उनमें कोई ना कोई तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसा बनाने का हुनर हो पर जोड़ने की समझ और ठहराव हो. और अगर
पैसा बढ़ाने की समझ ना हो किसी में भी, तो stunts shown on YouTube and in the world should not be tried at home. You should actually go for financial consultants, for people who actually have the reason, knowledge, vested interest to grow your money. I learned that quite late in life. One more analogy, an example I can give you is that मैं हमेशा सोचता था कि यार ये अब बिजनेस में आप इतने सारे लोगों से डील करते हैं, इतनी सिचुएशन से डील करते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इधर यू स्टेप ऑन अ लाइन और समबडी क्रॉसेस अ लाइन विद यू एंड इट लीड्स टू लीगल बैटल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स. तो लाइफ में स्टार्टिंग में ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे किसी की बात पसंद नहीं आई, किसी ने कुछ गलत कर दिया, हमने बोला कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं आपको, एंड केसेस हो गए, हम अग्रीमेंट्स में अटक गए, अग्रीमेंट्स में लूप होल निकलने लगे, और जिंदगी में बहुत समय तक वो केसेस लड़ते 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 एक दिन मैं सोचता रहा कि ये लॉयर का बिजनेस जो है वो सिर्फ केसेस लड़ने का तो हो नहीं सकता. क्योंकि मैंने जितने भी ऐसे लॉयर्स देखे जो कॉन्टिन्यूसली रोज कोर्ट जा रहे थे, वो सब खुद भी अपनी जिंदगी में दुखी थे. मैंने देखा कि सबसे बढ़िया लॉयर्स कौन है, सबसे अमीर लॉयर्स कौन है, वो थे कॉर्पोरेट लॉयर्स. वो अपने केबिन से बाहर ही नहीं निकलते थे, वो एसी रूम में बैठते थे, वो सबसे ज्यादा चार्ज करते थे. उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी फ्रॉम अ लिटिगेशन लॉयर. एंड दैट डे आई रियलाइज कि एक्चुअली अगर डिस्प्यूट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उसके बाद अगर आपको लॉयर की जरूरत पड़ती है तो यू आर ऑलरेडी टू लेट. असलियत में लॉयर का यूज केस लड़ने का नहीं है, केस होने से बचाना है. And that one day flipped my life. That day I realized that I need to invest in lawyers early. I need to invest in lawyers before I get into agreements, before I get into business deals, before I get into anything that can possibly lead to a mess. And that changed everything. I think I will apply the same to money. अगर आपको लगता है कि आप ने मार्केट में एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सेल, गुरलीन मैं थोड़ा आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू मेक सेल्स पिच एज वेल, ऑल्दो मुझे ऐसा कहा नहीं गया था, पर आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दीज फीलिंग्स एंड थॉट्स. अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, पोर्टफोलियो डाउन होने के बाद आके पूछते हैं कि यार अब इसका क्या करना है, तो सर अब इसका करना ही क्या है, अब इसका कुछ नहीं करना है. इनफैक्ट अगर आप इसका कुछ नहीं करेंगे तो देयर इज स्टिल अ चांस दैट यू विल मेक इट. अगर आप इसका कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज ये आपका काम था ही नहीं, ये किसी और का काम था. एडवाइस लेनी नहीं थी सिर्फ, इनफैक्ट अगर हो सके तो आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ये कमांड दे देनी चाहिए थी कि आप इसको करिए. ऑन द टॉपिक ऑफ टाइम, पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम, मैं बहुत जगह ये एनॉमली देखता हूं जहां पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में एक फर्क, जो बहुत बड़ा फर्क है, पर देखने में दिखाई नहीं देता कभी कभी. मैं सभी लोगों को देखता हूं कि वो जिस एक्टिव इनकम की बात कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, वो आपकी जॉब है, वो आपकी सर्विस है, वो आपका काम है, वो आपका प्रोफेशन है, जहां पे आप अपना समय खर्चते हैं और पैसा कमाते हैं. इसको हम बोलेंगे एक्टिव इनकम. एंड देन आई सी दैट द सेम पर्सन on the side is continuously watching stock market, is continuously watching commodities, is continuously looking at some or the other investment which also is active. They are continuously having their eyes on the ball. And मैं सबसे पूछता हूँ कि यार ये तो आपकी दो एक्टिव इनकम है. तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा मेन काम तो ये है, ये वाली मेरी साइड इनकम है, दिस इज माई पैसिव इनकम. एंड जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो दोनों जगह पे चोरी कर रहे हैं. वो अपने आप, दे आर रॉबिंग देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर इन देयर एक्टिव बिजनेस, बिकॉज उन्होंने अपनी मेंटल फैकल्टीज, अपना समय, अपना फोकस एक साइड इनकम पे लगा रखा है, और उसमें भी वो एक्टिवली ही काम कर रहे हैं. मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता डायरेक्टली, बिकॉज मेरे फादर एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ये उनका काम है, वो पूरा दिन अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो पूरा दिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. तो मैंने और मेरी वाइफ, जो कि मेरे साथ मेरी कंपनी में पार्टनर हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम पैसे पापा को देंगे, बिकॉज ये उनका एक्टिव काम है और हमारे लिए ये पैसिव इनकम होनी चाहिए.
So anything that you see, at least for me in life, is I look at passive income as income where I am not working at all. I am not spending my time at all. मैं अपने दिमाग का एक भी थ्रेड वहां पे ना लगाऊं और फिर भी या तो मेरा पैसा सेफ रहे या फिर बने, तो उसको मैं पैसिव इनकम बोलता हूं. और जहां जहां से मुझे एक्टिव इनकम आती है उसका मतलब यह है कि मैं अपना समय खर्चता हूं और मैं पैसे लेता हूं. वहां पे मैं अपने पैसे बिल्कुल नहीं खर्चता क्योंकि वहां पे मेरा समय जाना चाहिए. दैट इज माय एक्टिव इनकम. ऑन द रिस्क, एवरीबडी टॉक्स अबाउट जितनी भी हीरोइक इन्वेस्टमेंट स्टोरीज हैं, उन्होंने सही समय पे रिस्क लिया और आज 10 गुना हो गया, आज 100 गुना हो गया. आई ऑलवेज फील वेरी वेरी बैड अबाउट इट बिकॉज ये प्रिवेलिंग विजडम है. आई डोंट नो ये प्रिवेलिंग विजडम क्यों है. शायद क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और 15 साल वेट किया और 5 गुना हो गया. इज अ वेरी बोरिंग स्टोरी. इसमें कोई थ्रिल नहीं है, इसमें कोई फन नहीं है, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें वो नहीं है कि हम ऐसे मरने वाले थे और एकदम से हम यूं निकले और हमारा 5 गुना हो गया. इसमें थ्रिल नहीं है. बट टू मी रिस्क as a word has a lot of problem because interpretation of risk is the problem itself. जब भी कोई मुझे रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है और बोलता है कि नहीं नहीं अगर पैसा बनाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो आई ऑलवेज टेल देम कि हे यू नो व्हाट, आई ओनली टेक रिस्क इन माय एक्टिव इनकम बिकॉज उस जगह की मेरे को अंडरस्टैंडिंग है और वहां पे मैं अपना समय खर्च करता हूं, वहां से मैं पैसा कमाता हूं. पैसा कमाने के बाद जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, वो रिस्क में नहीं जा सकता. मैं भी रिस्क ले रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट भी रिस्क ले रही है, तो फिर बेसिकली सेफ कौन है? इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ डी रिस्किंग. अगर आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट बहुत ही विजनरी है, मेरे को विजनरी लोगों से बहुत डर लगता है. अगर आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलता है कि आप देखिए हम इतने विजनरी हैं कि हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके बारे में आज की डेट में लोग सोच नहीं रहे हैं, आई विल बी लाइक कि प्लीज आप उन चीजों में इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में सब सोच रहे हैं. क्योंकि मुझे ऐसी उन चीजों से सभी से डर लगता है जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा. एंड मैं अपने एक्टिव कमाए हुए पैसे से लॉटरी नहीं खेलता. मेरे को अगर लॉटरी खेलनी है तो मैं उसके लिए हो सकता है 2% पैसा अपनी नेटवर्थ का असाइड करूंगा, पर investment is not a subject of risk. Your financial consultant, your understanding of investment has to be de-risking. Otherwise, everybody is just taking risk. Nobody is de-risking you. And last submission on this, about playing long games. आजकल बहुत सारी information available है thanks to YouTube over last 3, 4, 5 years. People like Gurleen have been making great content, great education. हर किसी को कंपाउंडिंग समझ आती है, पर मेरी लाइफ का अब तक के सफर का कंक्लूजन ये है कि अगले 3 सालों में क्या कर सकते हैं ये हम सब ओवर एस्टिमेट करते हैं. हम सब से जब पूछा जाता है कि अगले 3 साल में आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं कि अरे ताजमहल खड़ा हो जाएगा, ये कर देंगे और वो कर देंगे और रिटर्न भी आ जाएगी और ये भी हो जाएगा. और जब हमसे कोई पूछता है कि अगले 10 सालों में क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं अरे साहब इतना लंबा किसने सोचा. पर आई थिंक व्हेन आई लुक बैक आई एक्चुअली सी कि जब भी मैंने 3 साल 5 साल वाले प्लान्स बनाए, उनमें मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये तो पता नहीं, बेइज्जती बहुत हुई. क्योंकि जो बोला था, जो सोचा था, जैसे करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो नहीं हुआ. उसके अलावा सब कुछ हुआ. उसमें अच्छा भी हुआ, उसमें बुरा भी हुआ, पर वो नहीं हुआ जो सोच रहे थे और जो बोल रहे थे. पर जब मैं 10 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऐसा बहुत कुछ हुआ लाइफ में जो उन 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल में किए गए काम का कंपाउंडिंग इफेक्ट था. मेरी जिंदगी के 10-12 साल में मुझे सिर्फ उन चीजों ने वैल्यू दी है जो सभी चीजें 1 साल और 2 साल और 3 साल की विंडो में फेलियर दिखती थी. जो ऐसे दिखती थी कि हाँ हाँ मतलब हो रहा है कुछ, तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है, देखेंगे क्या होगा. और जब भी मैंने सोचा कि हम एक छलांग मारेंगे 2 साल के अंदर अंदर, उस सब में मुझे इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी हुआ कुछ कुछ जगहों में, पर मेरा मेंटल पीस, मेरी हैप्पीनेस ऑफ डूइंग दैट एक्चुअली गॉट क्रश्ड.
तो उससे मेरी सीख अपने बिजनेस के लिए ये है, अपने काम के लिए, लाइफ के लिए ये है दैट द ओनली मेंटल मॉडल दैट आई यूज टुडे इज that whenever I am making plans for making money, investments, family, luxury, everything, I look at my last 10 years and I see कि अगले 10 साल में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो मैं पीछे मुड़कर रिग्रेट नहीं करना चाहूँगा, and I only invest in those areas. जो चीज़ मैं अगले 10 साल तक नहीं देख सकता प्रॉस्पर होती हुई, उन चीज़ों में मैं आज इन्वेस्ट नहीं करता. With that, congratulations to all of you. You are already in safe hands. The fact that each one of you is a part of Haripati family, we are together in this. We rely on, Gurleen and Haripati for everything. So congratulations to Gurleen, to Haripati, to all of you, and thanks for this opportunity and time. I would request Gurleen ma'am to join us on the stage. Ashish, please stay back. A very small and humble token of our love and gratitude for you. And that was some fun points there to learn. Please, a louder round of applause for the wisdom that Ashish has shared with all of us. And along with that, we will now not move towards any talk. We will move towards a very interesting Nukkar Natak performance by Black Pearl Arts, which is a theatre company that is running under the visionary leadership of Amol Sagar Nath, a prolific playwright, director and actor with over 17 years of experience. They are going to put up a show here which will talk about investment, talk about insurance, basically a little more practical light on everything that Ashish spoke about. And this presentation is called "Eh Bhai, Zara Dekh Ke Chalo." Can we have the Nukkar Natak company here on the stage? हॉस्पिटल का बिल मुझको तड़पाता है। तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हॉस्पिटल का बिल मुझको तड़पाता है। बढ़ता खर्चा टेंशन को बढ़ाता है। टेंशन में फिर किसने बैंक को फोन किया। मजबूरी में बहुत बड़ा सा लोन लिया। लोन चाहिए, अरे सुन लो मेरे दादा, किसको बताना। इतनी बड़ी टेंशन से इसको तुम ही बचाना। बस समझी? नहीं, अब भी नहीं समझी। पूरा गाना गा दिया, उसके बाद भी नहीं समझी। देख रहे टिक्कू भाई, एक नंबर की पत्नी है ये। सारे गुण औरतों वाले हैं इसके अंदर। सुनो मेरी बात, अभी परसों ही पापा को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल का इतना ज्यादा बड़ा बिल आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। अभी घर के खर्चे हैं, घर का रेंट है, बिजली का बिल, पानी का बिल, इसकी पढ़ाई का खर्चा है। पापा, पढ़ाई से याद आया, आपने 2 दिन पहले बोला था ना वो बुक दिलाने को। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आना चाहिए। देखा पिट के मुंह में जाने लगे, हमेशा से नौटंकी करते रहे, आगे चले। पापा मुंह नहीं। अरे किताबें नहीं दिलाओगे तो
खर्चा होता है, इतने सारे बिल होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल का बिल। अब ऐसा लगता है फिर किसी से लोन लेना पड़ेगा। और कितने लोगों से लोन लोगे तुम? अभी तो मेरे भाई से पैसे लिए थे। गाइस, म्यूजिक चलो भाभी 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 आ ना वो। और भाभी सब ठीक? भाभी तो चाय है हो जाती तो। बाहर में रखी, अभी लाती हूँ। अरे अरे रामू भाई रामू भाई रामू भाई रामू भाई। अरे रामू भाई पूरी दिशा तुमने खराब कर दी। सॉरी। अरे रामू भाई क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊं मोहन भाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो जाऊंगा मैं किसी दिन। कोई परेशानी? हाँ। कोई दिक्कत? हाँ। कोई टेंशन? हाँ भाई हाँ। भाभी क्या टेंशन? क्या परेशान? देखो अभी तुम तो जानते ही हो, परसों बाबा को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया है। हॉस्पिटल वालों ने बहुत बड़ा बिल बना दिया भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से लेकर आऊं। अब तुम तो जानते हो इतनी सी सैलरी है मेरी, इतनी सी लेकिन इतनी सी सैलरी में मैं कितने पैसे लेकर आऊं? अरे क्या भैया, बस इतनी सी बात है। तुम्हें एक ऐसा प्लान बताता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी परेशानी है ना, जितनी यूं 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 जाए, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पक्का? अरे पक्का। सोच लो। सोच लिया। नहीं देख लो। देख लिया। सुधा, दो कप चाय। क्या प्लान है? बढ़ते खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट, आय में वृद्धि के लिए एसआईपी, हॉस्पिटल के खर्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि स्वास्थ्य बीमा। करवाया ना? भाभी चल कैंसिल। अरे नहीं सुधा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि स्वास्थ्य बीमा क्या होता है इसके बारे में बताओ ना। अरे ये एक ऐसा कवच है जो मेडिकल खर्चों को संभालता है। अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे अपनों के पास स्वास्थ्य बीमा है तो तुम्हें कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं? अच्छा ठीक है। सुधा, चाय बना के रखना बिस्किट के साथ। हाँ भाभी। हम अभी टहल के आते हैं। हाँ। तो मुझे और समझाओ सी बात। थैंक यू। सरवान मेहरबान कदरदान शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से नुक्कड़ नाटक में। मेरी जान तालियां। बहुत शुक्रिया। तो साहिबान मेहरबान कदरदान आपकी जिंदगी को अच्छा बनाएगा, आपकी जिंदगी को जीने का एक नया तरीका बताएगा। अरे आप सबकी जिंदगी से परेशानियों को हटा के उनसे आपको निजात दिलाएगा। पूछिए ये सब करने कौन आएगा? कौन आएगा? मेरा जमूरा आएगा। जमूरा, भाई साहब मेरे जमूरे को देखा क्या? कहाँ? अरे पीछे झुक के बैठा। अरे जमूरा, ये ससुरा जमूरा एक बार में आता ही नहीं है। देखा टिक्कू भाई, अगर टाइमिंग सही ना हो ना तो प्ले की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। पर ठीक है, शो तो आगे बढ़ाना है ना। जमूरे को बुलाते हैं। जमूरे हीरोइन आई है। अरे मालकिन कहाँ हीरोइन? मालकिन कहाँ हीरोइन? देखा टिक्कू भाई, जिंदगी में ऐसे थप्पड़ खा के मर जाओ। अबे तो तेरी मालिक की इज्जत करता नहीं और तुझे हीरोइन ही चाहिए। अरे मालकिन कहाँ हीरोइन और कहाँ अबे ओए, मेरा मतलब कहाँ आप और कहाँ हीरोइन? अरे तारीफ कर रहा है जमूरे, थैंक यू। हाँ? वैसे जमूरे हाँ? तू आ गया है हाँ? तो हमारे भाई साहब और बहन जी लोग जो है बैठे हैं हाँ? उनको मैसेज दे दे। ओ भाई साहब, किसको मौसम चाहिए? मैं अबे ओए, काला अक्षर जमूरे बराबर। हाँ? सॉरी, इसकी अंग्रेजी थोड़ी पैदल है। मैसेज दे दे, मैसेज। तो भाई साहब, मैं हूँ जमुना, काम करता हूँ पूरा जीवन आपका सुरक्षित बनेगा, प्लानिंग बताऊंगा पूरा का पूरा। तो भाई साहब कौन आएगा भाई साहब, कौन आएगा? अरे देखो सकल से परेशान लगे। हाँ भाई इधर आप पे भाई साहब, चलो डुम डुम खुल जा मेरी जादू की
गुटली जाओ। हाँ, तो मेरी जादू की शक्ति ये बता रही है मुझको कि आपका हॉस्पिटल का बिल है ना बढ़ गया है। हाँ, और इसको देखकर आपका बीपी भी चढ़ गया है। हाँ, अरे तुमने बताया कैसे? तुमने कैसे बताया? हाँ, टिक्कू भाई ने बताया तो। हाँ, और तो आप कहीं से लोन लेने के बारे में भी सोच रहे हो? हाँ, सोचो हाँ। सोचो। लेकिन तुम्हें कैसे पता है सब? अरे पता होता है। हाँ, तो भाई साहब, अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मार्किन बता दे। मार्किन बता दो। क्या आपका मेडिकल बिल बढ़ गया है? हाँ। क्या आपका भी मेडिकल बिल बढ़ गया है? अरे तो इससे निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है ना, आप सभी भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए ताकि आप खड़ा होकर जमुना की जोर से मिलने लगी, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी समस्याओं से बच सकें। और मेडिकल इंश्योरेंस से हर बीमारी में आप खुद और अपने परिवार को संकट रहित रख सकते हैं। और सिर्फ स्वास्थ्य बीमा ही नहीं, जीवन बीमा और उसके साथ साथ एसआईपी और इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस से आयुष लाभ होता है। क्या आप जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस से टैक्स में बेनिफिट पा सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी लोग जानते हैं स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से इमरजेंसी में अस्पतालों में कैशलेस की सुविधाएं पा सकते हैं? सरकार की सिक्योरिटी में शेयर बाजार में निवेश से कंपनी की वृद्धि के साथ आपका पैसा भी बढ़ता है। दोस्तों, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, साथ ही साथ आपके पास फ्यूचर इनकम का सोर्स रहता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से आप रोजगार और कारोबार से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहेंगे। एसआईपी की कुछ योजनाओं में आप 100 रुपए से कम में भी निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी से आप अपना निवेश कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सब ठीक हैं, आज हम सभी तंदुरुस्त हैं, पर भगवान ना करे कल को अगर आपको कुछ हो गया तो आपने कभी ये सोचा है कि आपका और आपके परिवार का पीछे से ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए जरूरी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो दोस्तों हर महीने अपने खर्चे में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल कर अगर आप उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपके पैसे कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे बूंद बूंद पानी से एक घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे निवेश से बड़ा फंड बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी लापरवाही हमें कितनी बड़ी आर्थिक समस्या गुजर सकती है? बिल्कुल ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, एकदम सही कहा। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और निवेश ये हमारी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। और एसआईपी तो निवेश का सबसे आसान तरीका है जहां पर कंपाउंडिंग से पैसे बढ़ते हैं, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में आप हैं, आपका परिवार है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं और आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल बर्डन तो हर किसी की जिंदगी में आता है, पर आप इन सब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन सब से निजात पा सकते हैं अगर आप हमारी बताई गई बातों पर गौर करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे। बढ़ते खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट, आय में वृद्धि के लिए एसआईपी और मेडिकल जैसे खर्चों से बचने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस। और दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि आपको अब इन सब चीजों के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं हरिपत्ती से। हरिपत्ती, फाउंडेड बाय गुरलीन कौर टिक्कू, एंड हरिपत्ती सेज 6 ways to create wealth. लाइफ इंश्योरेंस, वाटर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस हेल्थ चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, असिस्टेंस। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है। अब कीमती है तो देख समझ के तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक भाई कदम लेके चलो। आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं
थैंक यू सो मच टू ब्लैक पर्ल आर्ट्स. बहुत बहुत सुंदर किया आपने. ये पूरी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. And like we all know, we are really trying to chase the clock here. So without any further ado, I would like to call on stage our next speaker who will be talking about India's growth story. I invite on stage Gurpreet Saini, Deputy Zonal Head North of Nippon Mutual Funds. Gurpreet sir, welcome on the stage. Please put your hands together. Good evening, and thank you so much, Gurleen and Avinash from NJ for giving me this opportunity. After Ashish का session और नुक्कड़ नाटक, vibrant performance, मेरा जो topic है investing का बहुत ही boring है, right? Boring investment में ही पैसा बनता है, तो मेरा काम इन दोनों ने बड़ा tough कर दिया, right? But before I start my numbers, मैं कुछ आपसे formal presentation start करूं. एक ताली आप सबके लिए, क्योंकि आज जिस इंडिया में आप खड़े हैं उसका अमृत काल चल रहा है. तो प्लीज अ क्लैप फॉर योरसेल्फ, योर कंट्री. यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स ऑडियंस है. कुछ यंग है, कुछ मेरी जनरेशन के हैं, कुछ मेरे से ओल्डर जनरेशन के हैं. आई पुट इट दिस वे, यहाँ पे वो जनरेशन भी है जिसने साइकिल देखा, फिर उसका लूना देखी, मोपेड, उसने बजाज देख लिया, चेतक, फिर उसने मारुति देख ली, इंडिका देख ली, होंडा सिटी देख ली, और आज मर्क, बीएमडब्ल्यू, ऑडी देख रहे हैं. यहाँ वो भी ऑडियंस है जिसने डाक 25 पैसे का आता था, जिसपे खुला होता था मैसेज, कोई भी पढ़ सकता था, डाकिया पढ़ सकता था. इनलैंड लेटर आया, उसके बाद टेलीग्राम करते थे इमरजेंसी के लिए, फिर फोन आया घुमाने वाला, फिर टू करने वाला फोन आया, उसके बाद मोबाइल फोन आया जिसकी 17 रुपए की इनकमिंग होती थी, फिर स्मार्टफोन आ गया, आजकल एप्पल फोन है. तो एक जर्नी पिछले 30, 35, 40 साल में, आई एम 45 ईयर्स, हम सब ने तय किए हैं. मेरा मैसेज नई जनरेशन के लिए भी है कि आगे क्या आने वाला है. जब मैंने बोला अमृत काल, जैसे गुरलीन ने बोला, आशीष भाई ने बोला कि आप सब लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, आपने पैसा बनाया है, क्या स्टॉप कर देंगे कि पैसा बन गया? नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है. इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग होता है. जैसे इन्होंने बोला कि 3 साल का प्लान, 5 साल का प्लान मेरा हमेशा फेल हुआ है, राइट? वो पंजाबी है ना सब सारे, मैं मतलब कुछ नहीं खट्टा होना चाहिए, लेकिन 10 साल में मैंने बहुत सक्सेस बनाई. तो कुछ नंबर्स बताऊंगा क्यों आपने पैसा बनाया और आगे क्यों आप बनाते रहोगे. आई हैव सम स्टैट्स फॉर दैट. देखिए, पुराना मैं डेटा नहीं बता सकता, लेकिन 2013, 2023 और 2028 का प्रोजेक्शन है आगे. हम 9वें रैंक में थे जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं. 2023 5वें में, जापान को हम ओवरटेक करने वाले हैं. पिछले 15 दिन पहले मैं टोक्यो में था. 12 करोड़ आबादी है उनकी, हमारी 140 करोड़ है. जो जीडीपी उनका 12 करोड़ आबादी से है, हमारा 140 से है. हमारा पर कैपिटा इनकम $2700 है, उनका $52,000 है. लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. और जिस रेट से हम चल रहे हैं, तो हम अगले 4 साल में, 2028 का एस्टीमेट है, हम 2 छलांग और लगा लेंगे, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे. और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, दैट हैज बीन फिनोमिनल. इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 13 से 23 और 23 से आगे. 23 से आगे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 22-23 जो था, 21-22, 20-21-22 कोरोना में चला गया, उसका नंबर डिस्टॉर्टेड है, राइट? आप देखिए ग्रोथ कहाँ है. इंडिया में है, इंडोनेशिया, चाइना, अरेबिया, और एक ग्राफ अगर देखें तो आप ये नीचे होता जा रहा है. कुछ कंट्रीज हैं जो इसके बाद डी ग्रो भी हुई हैं. पोस्ट कोविड की मैंने बात करी, बहुत बड़ा इवेंट था. पोस्ट कोविड अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया की ग्रोथ डिफरेंशियल, कोविड से पहले, कोविड के बाद, वी आर अगेन दी हाईएस्ट. तो व्हाट इज ड्राइविंग दिस ग्रोथ? ये 5 चीजें हैं सर. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. डेमोग्राफिक डिविडेंड, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्रूडेंस, डीरेगुलेशन गवर्नमेंट का काम है, डिमांड राइजिंग
ये आप लोगों का काम है, और डिजिटाइजेशन। ये 5 चीजों की वजह से ग्रोथ आई है और यही आगे ड्राइव भी करते रहेंगे, जिसको मैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। डेमोग्राफिक एडवांटेज क्या है? पूरे इंडिया की एवरेज एज क्या है, मीडियन एज? एनी गेसेस? नंबर लिखा होगा इधर, मैंने पढ़ा नहीं। एनी गेसेस? वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक कंट्री हमारे आगे पीछे है थोड़ा सा। 29 ईयर्स, 29 साल। हमारी जो मीडियन एज है वो 29 साल है। आप देखिए, वर्किंग पॉपुलेशन देखिए 20 से 55 साल में, वो रेड वाला चार्ट देखिए सर, 0 से 4 साल में हम 117 मिलियन, 5 to 9, 20 से लेके 55 तक, जिसको हम मानते हैं वर्किंग एज है। सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर है वो इंडिया के पास है। इंडिया से ह्यूज ह्यूज कंट्री सर। चाइना के बाद दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट? इसका एक मैं बैकवर्ड एग्जांपल आपको देता हूं। जब इंडिपेंडेंस के बाद हम बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश थे हम, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को था नहीं, पैसे थे नहीं, कारखाने लगाने का थे नहीं। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ। फिर क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज कम थे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम था। फर्स्ट टाइम पे 1984 में जो मिनिस्ट्री बनी थी उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आई थी। ह्यूमन को रिसोर्स की तरह ट्रीट किया गया। नहीं तो पहले क्या होता था, पॉपुलेशन है यार, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल्स को रिसोर्स पहली बार माना गया था और सारी की सारी पॉलिसीज वैसी बनती गई। ग्रोइंग वर्किंग एज ग्रुप मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, इंडिया, मैक्सिको, दीज आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज जिसको बोलते हैं। इनका ये एडवांटेज है। ये गवर्नमेंट का काम है। जो पॉपुलेशन थी वो क्या है, वो हमारी बढ़ाई हुई है, XYZ रीजंस। लेकिन उसको कैसे मैनेज किया, किसी गवर्नमेंट ने उसको रिसोर्स ट्रीट करना शुरू किया और उसकी पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाना शुरू की। तो आज उसको करते करते 40 साल हो गए। ये गवर्नमेंट का काम है, फिजिकल डेफिसिट जिसको कंट्रोल करना है। अब आप देखिए 14 से लेके ये ऑलमोस्ट कम हो रहा था, देन कम दी कोविड, FY20 देखिए, अब कोविड आ गया तो क्या हो, आप सबने भी ऐसे किया होगा, पैसे नहीं थे उधार ले लिए या आपने किसी की हेल्प कर दी। ऐसी गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉब लॉसेस हो गए, लाइफ के लॉसेस हो गए, तो गवर्नमेंट ने भी उधारी लेके अपनी पॉपुलेशन को, जो उनकी जनता है, इंडिया की जनता है, ठीक है, उसमें पैसा बांटा बाय वे ऑफ वेरियस मींस। तो आपको 21, 22, 23 में फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, वित्तीय घाटा। गवर्नमेंट भी घाटे में चलती है, हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री हमारे घर का वाइफ, वो भी बजट हमारा घाटे में रहता है। तो क्या होता है, हम ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। लेकिन फिर अगर आप देखिए 24, 25 और आगे का अगर ग्राफ देखिएगा, वो शार्प डिक्लाइन में। इतना कर्जा नहीं लेना चाहिए कि हम चुका ना सके, तो उसको फिजिकल प्रूडेंस बोलते हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट के साथ साथ GDP टू डेट रेशियो, गवर्नमेंट बोरो करती है, कॉर्पोरेट्स भी बोरो करते हैं, हाउस होल्ड भी बोरो करते हैं। दिस इज अमंग द बेस्ट इन टाइम्स। वो वाला चार्ट देखिए सर, इंडिया 81.3 है टू GDP। जापान जाएंगे 239%, जबकि डेवलप कंट्री है। तो क्या बोलता है, जितनी कम होगी डेट टू GDP रेशियो, उतना अच्छा है कि आपकी चुकाने की क्षमता ज्यादा है। डिजिटल इंडिया, क्या फायदा होगा डिजिटल इंडिया से? जैसे मैंने अभी फोन की बात करी आपसे, कि फोन से शुरू हुआ, इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ आज आप क्लिक ऑफ दी बटन कर सकते हैं। क्लिक ऑफ दी माउस भी नहीं बोलूंगा, मोबाइल आपके पास है, आप यहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। आप सब यहाँ पे है, बच्चे घर पे अगर बोल रहे हैं कि मुझे पिज्जा खाना है, आप यहीं से जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज दी पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। रीच बढ़ गया है, राइट? सेकंड जो है वो जनधन अकाउंट है। अब जनधन अकाउंट से क्या होता है, 80 करोड़ के जनधन अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये कब हुआ? पिछले 5-6 साल में हुआ। अकाउंट होने से क्या होता है, आपका फाइनेंशियल
स्टेटस बनना चालू हो जाता है। एक रिक्शा वाला है, एक सब्जी वाला है, एक छोटा दुकानदार है, उसको लोन नहीं मिलता क्योंकि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है कि चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। लेकिन जनधन अकाउंट मिल गया, पेटीएम आ गया, उसके सीधा अकाउंट में खाते में पैसे जाते हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, बैंक उसको लेंड कर देता है। पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हो चुके हैं, सोशल पेंडिंग है, दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन जितना गवर्नमेंट कर सकती थी उसको कर चुकी है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा है। जहां पे कमी है वहां पे गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग दैट इशू। क्या किया है डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम। हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमारा प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव होता है कि इतना टारगेट करोगे आपका इतना मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए किया है। ब्रिज बनाना है, 2 साल की मियाद है, आप 1.5 साल में बना दो, पहले टोल लगा लो, इंसेंटिव है, राइट। चाइना से केमिकल आता था, आप घर पे बनाओ ना। अगर आपने देखा होगा दवाइयाँ महंगी हुई थी कोविड में, क्योंकि जो सारा का सारा बेस था, 60% जो बेस होता है दवाई बनाने का चाइना से आता था। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव कर दिया कि आप यहीं पे बनाओ, मैं आपको यहीं पे इंसेंटिव दे देंगे। स्टार्टअप इंडिया, सर देखिए बहुत 50 स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है आशीष जी ने, ठीक है। इंडिया इज अ फैक्ट्री ऑफ स्टार्टअप्स नाउ। पेटीएम वाज अ स्टार्टअप वन पॉइंट ऑफ टाइम, जोमेटो था, इन नंबर्स ऑफ नॉट ओनली फिनटेक बट अदर प्लेटफॉर्म पे भी हमारे एग्रीगेटर जिसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आज की डेट में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। जीएसटी 2016 में लागू हो गया, सबको पता है आपको। इनिशियल हिकअप के बाद आज की डेट में हम 1,70,000, 1,80,000, कभी कभी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मंथली कलेक्शन है टैक्स का, जो डेवलपमेंट में काम आता है। मेक इन इंडिया, यू ऑल नो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला यहां पे क्यों नहीं बनाते हम। डिफेंस में मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर में मेक इन इंडिया है, ताकि हमारा लोगों पे भार कम हो बाहर के देशों पे, और हम इंटरनली प्रोड्यूस करें, कॉस्ट भी कम आएगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर आप देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है। जितना भी आप रोड्स देख रहे हैं, कोई अगर यहाँ से गया हो, जो जयपुर का रोड बना है, दैट्स अ फैंटास्टिक रोड। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ से अगर मुझे जयपुर जाना है, नारनौल तक 300 किलोमीटर है, 299 किलोमीटर मेरे घर से, मैं 3.5 घंटे तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 घंटे में, भी तो कैमरे लगे हैं, 3 घंटे में गाड़ी लगा देता हूँ वहाँ पे। इट्स ऑल एलिवेटेड रोड। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम इन प्रोग्रेस है। कंजम्पशन, ये बहुत बड़ी स्लाइड है। राइजिंग इनकम, इनकम क्यों राइज हो रहा है? मैंने जो अपनी सबसे पहली पीपीटी में बताया था, यूथ वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी है, जो 20 से 55 साल की है, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वो काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कंजम्पशन हो रही है। अब देखिए कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है। देखिए डिस्क्रिशन कब काम आती है, जब मेरे रोटी कपड़ा और मकान मेरा पूरा हो जाता है, उसके बाद डिस्क्रिशन होती है। अब देखिए डिस्क्रिशन में आप मूवी जाते हो, आप बाहर खा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो। बाहर से याद आया, मेरे गांव में जब मैं छोटा था तो जहाज कोई ऊपर से गुजरता था, सब छत पे जाके देखते थे कि जहाज है। आज यहाँ पे जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ हर 2 मिनट में एक जहाज जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट आफ्टर हीथ्रो इन द वर्ल्ड। एवरी 2 minutes either flight lands or takes off from here. So it has a shift, 40 साल में शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब भी हमारी बहुत कम पॉपुलेशन है जो बाहर ट्रेवल कर रही है। हम एफ्लुएंट हैं सारे, हम वी कैन अफोर्ड, बट स्टिल अभी भी ट्रेन एक माध्यम है, बस एक माध्यम है। ये आपको मेरा फाइनल स्लाइड है, ये आपको आगे की ग्रोथ स्टोरी इंडिया की बता देगा। देखिए ऑटो, कार, बाहर आए सब, 15 मिनट का जाम लगा ब्रिज के नीचे से। हमें लगता है बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियां हैं इंडिया में, नहीं है। आप देखिए 4% हाउस रेट के पास एक गाड़ी है, ओनली 4%। इंडिया में टोटल 29 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, प्लस माइनस 2-4-5% डेटा मेरा इधर उधर हो सकता है सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें स्क्रैप हो गए, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी है। यूएसए देखिए 81%। तो हम क्या है, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, पहले चाइना को सरपास करेंगे, फिर यूएसए के पास जाएंगे।
ये जर्नी कब होगी? अगले 10 में होगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल होगी जरूर। तभी मैंने बोला कि वी आर ब्लेस्ड, जो जनरेशन यहाँ बैठी है, जो अगली जनरेशन आपके घर में बैठी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इकोनॉमिकली वी आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। आउटबाउंड ट्रिप्स 6%, 6% पीपल ट्रेवल अब्रॉड। एसी JNK छोड़ दीजिए, हिमाचल के कुछ पार्ट छोड़ दिए, बाकी सब जगह इंडिया में एसी चाहिए। 8% हाउस होल्ड। फ्रिज 18%, स्मार्टफोन यूजर 37%, इंटरनेट यूजर 50%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर इज अ ग्रेट रनवे फॉर ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस हैं, आपका बिजनेस पिछले 10 साल में मल्टीफोल्ड हुआ होगा क्योंकि स्पेंडिंग पावर बढ़ गई। और हम 100 साल का अगर विजन लेके चलें 2047 में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, दीज आर दी नंबर। हमारा GDP का टारगेट है, पर कैपिटा इनकम का टारगेट है 20,000, अभी मैंने जैसे बताया 2700 है, उसको 10 टाइम्स करने की सोच रहे हैं, राइट। तो अगर इनकम बढ़ेगा तो उसकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, एंड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। एंड विद दैट आई क्लोज माई रिमार्क्स। पैसा आपका बना है पिछले 40-50 साल में, हर एसेट में बना है, जमीन में भी बना है, स्टॉक में बना है आपका पैसा, बॉन्ड्स में आपका पैसा बना है। एंड ये अमृत काल चल रहा है इंडिया का। क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है, आगे कैसा चलेगा, मैं आपको संक्षिप्त अपनी स्लाइड्स में बता चुका हूँ। कीप इन्वेस्टिंग, फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ओवरनाइट कोई अमीर नहीं होगा। ओवरनाइट आपकी सिर्फ एक ही बंदा अमीर हो सकता है जिसने लॉटरी डाली है और उसकी लॉटरी लग गई है, दैट्स इट। बोरिंग इन्वेस्टमेंट करती रहिए। हरिपति गुरनीत मैडम है यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, उनकी हेल्प लीजिए। एंड कीप इन्वेस्टिंग, कीप मेकिंग मनी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much. And again, Gurleen ma'am, can we please have you on stage? Thank you, thank you. Gurleen ma'am, actually I would request कि आप stage पे हमारे साथ please थोड़ी देर के लिए रुक जाएं. We have a very humble award ceremony for our clients, for people who make Haripatti what it is. It is the first time Parveen ji is coming on stage. Can you please put your hands together for her? Thank you. और हाँ, मैं जिनको भी स्टेज पे बुलाऊंगी, अगर वो कुछ भी कहना चाहें about their experience with Haripatti or anything in their heart, you're most welcome. I would like to invite on stage Harish Verma and Rakesh Verma, family of Shri Ashok Kumar Verma ji. We had this list in front of us and we weren't sure इस list में से कितने लोग आएंगे. Actually, everyone turned up. The entire. I would like to invite on stage Harjeet Singh. Harjeet Singh जी, please stage पर आए और एक recognition, एक plaque हमारी तरफ से, हरिपति की तरफ से please receive करें. Can we have the music? नहीं? Please put your hands together for another very dear member of the Haripatti family. I also know, as gentleman said, I also know his father when he was he started with him. He did by Keyman policy, which last year only it is flashed. So he was very humble man, and she is much more than. We wish you all the best, and thank you very much. Thank you. Gurleen ma'am, anytime is taking the mic, it's just a lot of warmth that is going through, that is coursing through my body. But okay, without any further ado, I would now like to call on stage Saksham Luthra from the family of Pramod Luthra ji. Saksham, can we please request you to hurry up onto the stage? I truly appreciate Saksham taking the mic himself. Perfect. मैं वहाँ बैठे सोच रहा था क्या बोलूँगा, फिर मुझे याद आया कि
हमारा रिलेशन तब से शुरू हुआ था, मैं इतना जरा सा होता था और हम अंकल को देख के इसलिए खुश होते थे कि अंकल हमारे लिए वीडियो गेम या गिफ्ट लेके आया करते थे उस टाइम पे, और पापा ने अंकल को ऐसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो इतना पुराना रिलेशन है कि मैं अब इतना ग्रो अप हो चुका हूँ कि अब मैं बिजनेस मानता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे इंस्पिरेशन भी हो। Thank you, Saksham. Thank you so much. On this note, Ashish, thank you for your presence on stage. But Gurleen ma'am and Praveen ma'am, please हमारे साथ ही रहिए. May I also now request Gurpreet Saini ji to please join us for the next round of felicitations on this stage. And I would like to call Jyotsna Anand and Padma Bhushan Anand on the stage for the next round of honors and recognition. Jyotsna and Padma Bhushan Anand, please. Thank you. आप कुछ बोलना चाहेंगे, मैम? Please. Well, after all what has been said, the story is the same. We have been associated with Gurleen from the second generation. We have invested with our father, and I am continuing the same. And it is my pleasure, my best things that I am associated with the Haripati family, for their service, for their dedication, and everything. Thank you so much. Thank you. And on behalf of Haripati family, I thank you for your continued belief in all of us. On that note, I would like to invite on stage Anil Jain. Anil ji, wherever you are, please join us on the stage. हेलो, मैं गुरलीन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके जो फादर थे वो हमारे यहाँ आना जाना था उनका। मैं सेकंड बार जो स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, वैसे तो स्टेज पर रहता हूँ मैं, लेकिन पहली बार सेकंड बार बोल रहा हूँ। हमारे जो इनके फादर जो है हमारा इंश्योरेंस करते थे और खास रिलेशन है हमारे इनके। जब से हम जुड़े हुए, मेरी शादी को 42 साल हो गए, तो 42 साल से तो मैं इनको जानता हूँ। और ये उससे पहले से इनके जो है दादा दर्शन सिंह जी, वो हमारे ससुर फादर इन लॉ के पार्टनर थे। जब से मैं जानता हूँ, तो मैं आलू वालों का दामाद हूँ, तो उससे मैं इनको पहचानता हूँ मैं इन्हें। बाकी जो है फैमिली ये टॉप है और इन पे पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास हमने किसी पे नहीं करा जितना इन पे करा हमने, और कभी कोई गलत बात नहीं, कुछ नहीं। और मैं आप बोल रहा हूँ तो थोड़ी हिम्मत हो रही है। जब पैसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्या करोगे आप? जब पैसा आ गया है, जब पैसा आया, पहले पैसा किसी के पास नहीं था, 1-2%, 4% आदमियों के पास था। जब पैसा आया है तो मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और छोटा सा ये इंटरेस्ट, छोटा सा ये रेंट, और फिर व्यापार अपना, बस लाइफ पार। थैंक यू। Thanks to you. Thank you. Okay, I would now like to invite on stage Bhushan Davar. Bhushan Davar ji, please मंच पर आए and kindly receive this recognition, this honor from the Haripati family. It's so lovely to see Haripati's association not just with individuals but with entire families. Bhushan ji, please share some words with us. इस हरिपति फैमिली से मेरा कई सालों का 85 से मेरा संबंध है। इनके फादर साहब
सरदार त्रिलोक सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ बहुत प्यारा संबंध रहा। हमारे हर काम उन्होंने बेखूबी निभाए। शायद इसी प्रकार से गुरलीन जी भी हमारे साथ रही हैं और कभी किसी काम में आने की तकलीफ़ नहीं दी है। इन्होंने हमारे को सब प्रकार से ठीक ठाक रहा है हर चीज़। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bhushan ji. Thank you so much. And on that note, Gurpreet ji, thank you for being with us on this stage. For the next round of felicitations, may I call on stage Deepak Sharma ji to kindly join Gurleen ji and Parveen ma'am. We still have to hear a very insightful talk from Deepak ji, but thank you for joining us. I would like to invite on stage Inder Sahni Sahab. Inder ji, please stage par aaye. Please join us. Inder ji, the mic and the stage. Nahi? Okay, thank you. The trust, yes, okay. Whenever we think of investing something, the only name which comes to our mind is Gurleen. And this is passing on to the next generation also. Whenever my daughters, they ask about something, where should we invest? I said, I don't have any knowledge, talk to Gurleen. And they do the same. And she's the one who, always gives them ample time and clears all their doubts. That is very good about you. Thank you, ma'am. And that has been my experience with Gurleen ma'am as well. No matter what the question, no matter how many times, she's always there to answer with a lot of patience. I now invite on stage Rakesh Pabbi. Rakesh ji, kindly join us on this stage, another valued member of the Haripatti family. To see that so many people, so many families have turned up to celebrate this occasion. हेलो, मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा। मैं 17 साल का था जब दिल्ली में आया, तो बड़े भाई तरलोक जी ने हमारी उंगली पकड़ के हमें इस लाइन में डाला और मंडी का कारोबार है हमारा। उनके बाद गुरलीन जी से हम मिले, इन्होंने हमें सिखाया और आज इस काम को इन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया और जो आज हमारे बच्चे हैं, इन्होंने उनकी उंगली पकड़ी हुई है और उनको गाइड कर रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी हरिपत्ती टीम का धन्यवाद करता हूं। On that note, I would like to invite on stage Anil Pabbi. Anil ji, kindly join us on this stage, another valued part of this big fraternity that Haripatti has built. सबने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बात करी, लेकिन मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो बच्चे अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं, वो बहुत कम बच्चे होते हैं। शायद मैं भी उनमें से नहीं हूँ, लेकिन ये गुरलीन है, ये मेरी सिस्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके गई, आई सैल्यूट टू हर एवरी टाइम। All of us salute to Gurleen. So wonderful to invite on stage Prince Khurana. Remind all of you that she's very grateful. All the Haripatti family is very grateful for not just the trust but the love all of you constantly show. Good evening, everyone. Really feeling short of words to express my emotions because we are knowing this family from the last 45 years. इनके पापा त्रिलोक सिंह जी और मेरे फादर इन लॉ दर्शन लाल खुराना जी, दे वर बोथ, मतलब हमारा इतना ट्रस्ट है इनकी फैमिली के ऊपर। कुछ भी इन्वेस्ट करना होता है ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है, गुरलीन मैम को फोन कर ले। And the next item on the agenda, in fact, is a talk by Deepak Sharma, who is the Executive Vice President and National Head, base agency Niva Bupa Health Insurance, and he shall be telling you about health insurance. Uska kal, uska aaj, or uska kal. Over to you.
Good evening, everyone. I'm so, thank you, Tikuji, always the powerhouse. And we are so blessed, at least I am, जिस दिन से टिक्कू फैमिली के साथ मुलाकात हुई है, because energy भी मिली और business भी मिला at the same time. So I am Deepak Sharma. I'm working with Niva Bupa Health Insurance Company. कुछ हमारे customers भी होंगे यहाँ पे, but heartiest congratulations to Gurleen. And I would rather say the first thank जो मेरे दिल से निकल रहा है वो मिस्टर त्रिलोक सिंह जी को निकल रहा है, because he has given such a wonderful asset to the company, and special thanks to him. Now about Gurleen, उनके बारे में अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट से सुना है, मैं थोड़ा उनके बारे में और आपको बताता हूँ हमारी कंपनी के बिहाफ पे, because she is the pride of Niva Bupa. She is, हमारे यहाँ पे ना एक एजेंसी प्रायोरिटी सर्कल होता है जिसमें एवरी क्वार्टर यू हैव टू बी अ परफॉर्मर, एंड ऑल ओवर इंडिया नॉट मोर देन 500 पीपल out of 1,45,000 advisors get qualified. And very happy to tell that Gurleen has qualified for 30 regular times for that. So congratulations, Gurleen. Not only that, Gurleen at the same time is a CEO club member with the company. और जब मैं CEO club member का बताता हूँ, all over India we have not more than 150 advisors who are our CEO club advisors. So congratulations once again to Gurleen, because achieving this particular level, हमारी company का एक purpose है. We say that every Indian, we give every Indian the confidence to access the best health care. हर इंसान के पास ये हक होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए that he should go and access the best health care. That is the purpose of the company, and very happy that Gurleen has taken this so seriously, and she has obviously legacy को तो आप आगे लेके जा ही रहे हैं. She has covered more than 1,200 customers with us, right? अगर आपके पास 1,200 customers हैं, she has covered 1,200 families who are now covered under the health insurance. Not only that, she has got more than 700 claims worth 8 crore rupees, which she has paid for all the clients of, इसके अंदर मैंने 2 करोड़ अभी ऐड नहीं करा, जो भी आज ट्रैवल वाला आप बता रहे थे. बट दिस इज अ काइंड ऑफ कमिटमेंट जो होता है, आप एडवाइजर्स तो ले लेते हैं, राइट? पैसा लेने के टाइम पे बहुत लोग आते हैं. कितने लोग आपके पास आते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आपको एक्चुअली चाहिए? वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड्स दैट Gurleen was talking about के किसी की डेथ में it is only the advisor or probably somebody from an insurance company who comes for the help, and that is something thank you again Gurleen and team Haripati. About Niva Bupa, as a company we are a fair bit abhi newborn babies in the industry. Abhi 14th of November we got listed, and now we are a listed company. We are a 5,600 crore company till last year. We are the fastest growing health insurance company. And as a company, we have paid more than 19 lakh claims. 19 lakh अगर हम लोगों ने claim pay करे हैं, तो I think this is something जो हम लोगों की ही family की बात है. Right? It is related to our own families. It is related हर रोज के, जो हमारे हर रोज के दिनचर्या के अंदर हम देखते हैं. आशीष वॉज टॉकिंग अबाउट पैसा बनाओ, पैसा जोड़ो एंड पैसा बढ़ाओ. एक चीज़ और जोड़ देना सर उसके अंदर, अगर आपको अच्छा लगे, पैसा बचाओ, राइट? एंड दैट इज समथिंग विच इज द इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी पैसा जोड़ना एक बहुत डिफिकल्ट काम है. आप सोचिए, आपने 20 साल तक लगातार पैसा जोड़ा, 10 साल पैसा जोड़ा, और पैसा जोड़ने में लगे रहे, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने का वो होता है ना, एक तलवार लेके चले हैं, बट शील्ड भी होनी चाहिए एक हाथ में, एक वॉरियर के. तो 20 साल हो गए पैसा जोड़ते हुए, 10,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, जोड़ लिया 1 करोड़. अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया किसी को फैमिली में. व्हाट विल हैपन? आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं. वी ऑल फील एंड वी थिंक दैट वी आर फिट. हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हम फिट हैं. बड़े सारे ऐसे मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे, और हमने तो बहुत केसेस देखे हैं कि मेडिकल टेस्ट हो गया, कहेगा यार अभी पिछले हफ्ते मेडिकल कराया था, उसमें तो कुछ नहीं निकला, बट उसके बाद भी कैंसर हो गया. व्हाई?
इंडिया इज द फास्टेस्ट, अमृतकाल जैसे गुरप्रीत जी बोल रहे थे, अमृतकाल है, बट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले तो बीमारियां नहीं सुनी होंगी ना हमने, राइट? वो बीसी और एसी, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड की बहुत दुनिया है, राइट? आफ्टर कोविड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 14 लाख नए कैंसर पेशेंट्स हर साल इंडिया में आते हैं। 25 लाख डायबिटिक पेशेंट्स हर साल इंडिया आते हैं, राइट? दे आर, इंडिया इज बिकमिंग, हम एक हम लोगों ने नोशन बना रखा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टबैको नहीं लेना, सिगरेट नहीं पीनी, राइट? हम कहते हैं शराब नहीं पीनी। सारा का सारा माइंड डाइवर्ट कर रखा है इस 2 दुनिया के अंदर, सारा का सारा आप लोगों का माइंड इस तरफ डाइवर्ट करके, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट द शुगर, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट द मिल्क दैट यू आर हैविंग, राइट? गाय दूध पीती है, देती है, सॉरी, और हमारे को भी बड़ा अच्छा होता है कि यार गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है, बट वो गाय पहले क्या खाती थी और आज क्या खाती है उसमें बड़ा फर्क है, राइट? अल्टीमेटली देगी वही गाय जो उसने खाया होगा। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप घर का मैदा उठाइए, आप घर की दाल उठाइए, आप शुगरी ड्रिंक्स उठाइए, आप फ्रूटी उठाइए, आप पेप्सी उठाइए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर नथिंग बट द स्लो पॉइजन। डेफिनेटली इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट, बट एवरी पर्सन इज ग्रोइंग विद एज। आज जो इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, कल वो इंडिया ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन। व्हाट विल हैपन देन? It is so important that money that we are making should also be protected, right? अभी क्या ना, हम लोग सिर्फ 3 Ds कवर करते हैं, and this is for all of you. The first one is what? Death. The second D is disablement, and the third one is disease. हमने स्कूल में बड़ा कुछ सुना, हमने स्कूल में देखा कि यार कम्युनिकेबल डिजीज होता है, राइट? जुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। But then there are lifestyle diseases which are happening nowadays, right? और कौन से डिजीज हो रहे हैं? न्यूट्रिशनल डिजीज हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज आपने देखा होगा कि उनको डायबिटीज हो रहा है। पीपल गोइंग टू अ जिम, दे आर फॉलोइंग डेड एक्सरसाइज करते हुए। व्हाई? देयर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। स्ट्रेस आ रहा है, अननेसेसरी का स्ट्रेस आ रहा है, बट हम लोगों ने खरीदा हुआ है। ओवर एंड अबव, आज आप जहां पे बैठे हैं, जहां पे सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, राइट? कैपिटल ऑफ द कंट्री के अंदर बैठे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ आज? हम सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन पोल्यूशन। जो पोल्यूशन अंदर जा रहा है वो अंदर ही डैमेज कर रहा है, एंड दिस डैमेज इज नॉट हैपनिंग टुडे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हमारे को, पहले एक टाइम हुआ करता था जब आप कल की बात बता रहे थे, कल, आज और कल के अंदर, पहले लोग 5,000 रुपए की इंश्योरेंस लेते थे कि यार 5,000 का सम इंश्योर्ड बहुत है, 25,000 का सम इंश्योर्ड बहुत है। आज एक हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं ना, उस हॉस्पिटल के अंदर एक रूम 25,000 रुपए का आता है। और आप लोग तो डिग्निफाइड लोग हैं ना यार, यू आर द हाई स्टैंडर्ड पीपल, आप लोगों का एक स्टैचर है, मार्केट है, you are living in an aura. Why would you go to any kind of a Deen Dayal hospital or any other hospital? So you have selected one level of hospitals. That level of hospital is expensive. What is the kind of insurance that you have taken today? For you, and we have a coverage. आज हम youngsters के लिए भी coverage लेते हैं. लोग कहते हैं कि यार आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता है हर साल, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ रहा है, राइट? वही ऑपरेशन जो पहले 1.5 लाख रुपए का होता था हार्ट का, आज वही ऑपरेशन 4.5-5 लाख का हो रहा है. सो मेडिकल इन्फ्लेशन इज राइजिंग. आज you are wearing an Apple watch, you are wearing having an Apple phone, but you are not having an adequate sum insured. You are not having the right kind of a policy. It is so important that you have to understand, to protect the money that you have made, you have to cover yourself. Health से भी करना पड़ेगा, life से भी करना पड़ेगा, but coverage हमारे लिए important है. Youngsters के लिए हमारे पास policy है, senior citizens के लिए भी है. ये दोनों important है हमारी life में. राइट बच्चे हैं उनके लिए भी पॉलिसी है, जवान है उनके लिए भी है, और जो थोड़े आज के डेट में सीनियर सिटीजन हो रहे हैं उनके लिए भी पॉलिसी है. पॉलिसी इसलिए भी है जब हम बाहर जाते हैं, एंड आई जस्ट टेल यू, वी गाइस वर इन स्पेन, हैप्पी टू वी गाइस वर टुगेदर, गुरलीन एंड टिकू जी एंड ऑल ऑफ अस, बिकॉज दैट वाज द CEO, हमारा मीट था वहाँ पे. देयर वाज अ मैन हु फेल इल.
ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज था, इसीलिए उसका 1.5 लाख रुपए का जो खर्चा था इट गॉट कवर्ड, राइट। बाहर मेडिसिन भी नहीं देते हैं, दे विल नॉट गिव यू इवन अ सिंगल मेडिसिन। अगर आपको तो आई एम डेफिनेटली, यहाँ पे बहुत सारे कनाडा वासी होंगे, बट बाहर वो भी नहीं देते हैं कि आपको एक मेडिसिन मिल जाता है। सो वी ऑल्सो कवर, एंड आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ट्रैवल करें आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कवरेजेस। एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट, हर एक्सीडेंट में, और इंडिया में 14 लाख एक्सीडेंट होते होंगे साल में शायद, लेकिन इंडिया में हर रोज एयरबस 380 इतने लोग हर रोज डेथ होती है उनकी एक्सीडेंट की वजह से। हम लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हर रोज 350-400 लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट। कौन सफर करता है उसके बाद? व्हाट हैपेंस? यू आर गेटिंग कवर्ड, विल गिव ऑल द प्रोटेक्शन वट एवर यू हैव। एक और हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों के साथ, राइट, दैट इज वट एवर पॉलिसीज यू हैव, प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स। बड़े सारे लोगों के पास पॉलिसी तो होती है, लेकिन वो अपनी लॉकर में रखी होती है, अपने कंप्यूटर में रखी होती है। यू गॉट टू शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स। पॉलिसी ले लिए, somebody is hospitalized, किसी की डेथ हो गई, पॉलिसी का पैसा पड़ा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है यार कोई प्रीमियम ही नहीं पे कर रहा, घर वालों को लगता है यार उन्होंने कोई इंश्योरेंस ही नहीं कराई थी। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिसी लीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ यू। हर एक्सीडेंट डेथ नहीं है, राइट। बड़ी बार हम देखते हैं कि यार बस पलट गई, राइट, कार पलट गई, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जरूरी नहीं है सब लोगों की मौत हो जाए। 70-80% इंजर्ड हो जाते हैं। जब 70-80% लोग इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे पॉलिसीज के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट एक ऐसा कवर है जिसके अंदर आप लोग पार्शियल डिसेबलमेंट से लेके टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट से लेके वीकली कॉम्पनसेशन तक हम देते हैं। इफ समबडी इज गॉट इल, 5 लाख रुपए की उसके तनख्वाह नहीं, टेकन राइट पॉलिसी, उसे हम 1 लाख रुपया हर हफ्ते का देखते हैं। सो इफ समबडी हु हैज जस्ट जॉइंड, और हमारी कंपनी के अंदर हुआ है सर, द पर्सन हु जॉइंड द कंपनी, 10-15 दिन के बाद उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया, एंड फाइनली ही वाज नॉट एबल टू जॉइन द ऑफिस फॉर अराउंड 2 months। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर, 2 महीने में 8 हफ्ते होते हैं, उसकी तनख्वाह 5 लाख थी, लेकिन उन 2 महीनों के अंदर जो 8 हफ्ते थे, हर हफ्ते का 1 लाख रुपया मिला, तो भाई को 8 लाख रुपया मिल गया। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कवर योर सेल्फ फॉर द पर्सनल एक्सीडेंट एज वेल। अनदर थिंग, हम सब लोगों ने हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर काटे होंगे। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो सी है, जरूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाओगे तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा ही होगा, ओपीडी भी होता है, राइट, ओपीडी भी होता है आपका। मैं अपने फादर का आपको इंसिडेंट बताता हूँ, चिकनगुनिया हुआ उन्हें लास्ट ईयर। मेरे कम से कम 10 हॉस्पिटल के, द्वारका में हॉस्पिटल है मणिपाल, मेरे 10 हॉस्पिटल के चक्कर कटे होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन 10 के 10 बार 10 तरीके के टेस्ट हुए हैं। जितने भी टेस्ट हुए थे उन सबका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया, उसके लिए आपके ओपीडी कवर होता है, राइट। 4-5 हज़ार रुपए का, अगर आप देखेंगे ना 5-6 हज़ार रुपए, बट आप उसकी वैल्यू समझिए, व्हाट इज दैट वी आर ऑफरिंग। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, हम सब लोगों के पास, आप देखिए कि आप लोगों का एक मार्केट में स्टैचर है, मानते हैं आप लोग? कोई भी पड़ोसी हो आपका, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या आपका कोई फैमिली मेंबर होगा ना दूर का, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, सबसे पहले आपके पास आएगा पैसा लेने के लिए। सही कह रहा हूं? दिस विल हैपन नॉर्मली, राइट। किसी को हो जाएगा, वो कहेगा यार आपके पास कुछ पैसे हैं, मेरे को दे दो, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। प्लीज टेल योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स कि उनको भी इंश्योरेंस करानी चाहिए। अल्टीमेटली वो आप ही के पास आएंगे, राइट। तो इट इज द राइट वे ऑफ टेलिंग देम कि यार तूने पॉलिसी ली है कि नहीं ली है, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। इट इज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल द पीपल अराउंड यू आर कवर्ड। इनफैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने होम हेल्थ की भी कवरेज कराइए। हमारे घर में आते हैं ना काम करने वाले, उनके लिए भी इंश्योरेंस कराइए, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको भी कल को कुछ होगा, 1 दे विल स्टिक विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। 2 उनको कुछ होगा तो आप उनको इतना अच्छा हेल्प कर सकते हैं दैट ही विल बी देयर विद यू फॉर यू एवर। इंश्योरेंस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट सर, राइट। इट इज नॉट अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी। हम तो ये कहते हैं कि यार इंश्योरेंस बाकी सबका फादर है, इट इज द अम्ब्रेला ऑफ एवरीथिंग।
बिकॉज अगर आपके पास इंश्योरेंस है, जो आपने 20 सालों में पैसा या 10 सालों में पैसा बनाना है, वो हो सकता है अगले 24 घंटे में अगर आपने पॉलिसी ली है उतना ही आपको कवरेज के अंदर पैसा मिल जाए. यू नो, इट प्रोटेक्ट्स योर डिग्निटी. आप जहां पर हैं, जिस लेवल के अंदर वो आपकी प्रोटेक्ट करेगा आपकी डिग्निटी को. यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी. बड़े सारे लोगों को घर बेचने पड़ते हैं. वो नुक्कड़ नाटक इतना अमेजिंग था. इट वॉज सो ट्रू. पीपल बाय हाउस, लोगों को सेल करना पड़ता है. लोग खरीदते हैं, यार सस्ते का सौदा ले लेते हैं. आप लोगों को मेक श्योर करना है कि यार बनाया हुआ संपत्ति जितनी भी है वो किसी मैं कहूंगा अनएजुकेशन की वजह से, छोटी सी कंजूसी की वजह से, आई डोंट थिंक सो वी शुड डू दैट. राइट? इट इज, यू शुड कवर योर सेल्फ, मेक ऑल द पीपल अराउंड यू कवर. इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी अराउंड अस शुड बी हैप्पी. राइट? दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू. इंश्योरेंस इज आप लोगों के लिए रोटी कपना मकान और इंश्योरेंस अल्टीमेट रियलिटी होगा. यू कैन नॉट अवॉइड इट. अगर आपको लग रहा है आप सारी उम्र फिट रहेंगे तो आई कैन बेट यू ऑन दैट. इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है. राइट? ऑन दैट नोट, thank you very much, and Gulleen, thank you very much for this opportunity, and I had a wonderful time. Thank you. Wonderful, wonderful, wonderful to listen to you. Here we enter a lovely and a glowing award ceremony for all the members of Team Haripatti. I would request you to stay here. And I invite on stage first Aditi Sharma. Aditi, can we have you on stage? Thank you for being a part of Haripatti. You know, back in the day, this company started with one employee, but look at this solid, robust team it has now. Next on stage, I invite Anuradha. Anuradha, quickly come onto the stage to receive your award. Next, I would request Gunjan Singh to join us on the stage. Gunjan, welcome and thank you for being a part of the Haripatti team. Quickly then, I invite on stage Gurmeet Singh. Gurmeet, kindly join us on this stage. Thank you for your valued service to the Haripatti team. All of these are the shining stars of Haripatti. Next, I would like to invite on stage Neha Singh. Neha, come up on the stage to receive your Shining Stars plaque. Coming up on stage is Priyanka Bali. We are ready with your Shining Stars plaque, Priyanka. Welcome on the stage and thank you for all your service to Haripatti. Next up on stage is Riddhi Gupta. Riddhi, run up onto the stage, join us for this very special moment and thank you for being a shining star of Haripatti. Next up on stage is Sanjana. Sanjana, welcome and congratulations. Here is a small token of our appreciation for all your service. On stage now, Sheetal Verma. Sheetal, yes, now you can quickly come up onto the stage and receive a rightful honor for being such a valued part of Team Haripatti. At the end on stage, I would like to invite Gagan Puri for his continued dedication to the company and to the members of the company. This is a very special moment. Kindly put your hands together. And may I invite on stage the entire team now very quickly. The whole Haripatti team, please join us on stage for a picture which will go straight to our bucket of memories, to our photo album of very, very special moments that we've seen at Haripatti. This is the team that is bringing in the 21st year
of the company's existence. And oh my God, they look quite stunning. 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन। This is it. We are almost towards the end, but I will now give the mic to Mr. Tikku for a vote of thanks and some words from you. Thank you very much. Can we have a big round of applause for the entire team? They work really very hard. गुरलीन का जो DNA वो अच्छे तरीके से सब में गया हुआ है, and believe me, Gurleen ensures that every client is also taken care of, but she also ensures that every employee is taken care of. She has given very clear instructions to her team कि किसी को भी किसी की कहते हैं ना अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये नहीं छोड़ना कि अच्छा रह गया कुछ। लेकिन एक बात और गुरलीन सिखाती है रोज कि कभी भी कोई कस्टमर उल्टा बोले तो किसी की उल्टी बात नहीं सहनी है, बिकॉज जब आपके काम में कमी नहीं है तो आपको कोई उल्टा नहीं बोल सकता। And I can tell also one thing, for all the business that comes in, there's a lots of business she says no to because she is very clear about it कि भैया एक गलत कस्टमर आपके 10 कस्टमर का टाइम ले लेता है और साथ में आपके एम्प्लॉय की जो मेंटल स्पेस है खराब करता है। जबकि बाकी कंपनी कहीं पर भी आप जाओ लोग कहते हैं सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो, शी सेज लोगों को खुश करो। आप लोगों ने आगे वाला पार्ट देखा है गुरलीन का जो सबने बोला विच इज ग्रेट, और मैं पीछे वाला पार्ट भी देख रहा हूँ पिछले 20 साल से, वेयर एवरी डे शी लर्न्स, शी ट्राइज टू लर्न समथिंग और न्यू। इवन आफ्टर मैरिज शी गॉट मैनी डिग्रीज, कोविड में भी अपना शी वॉज वर्किंग ऑन CFP और रेगुलरली, बिकॉज अगर खुद नॉलेज अपनी इंप्रूव नहीं करेंगी तो आपको कैसे सिखाएंगी। एंड टुडे आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ जहाँ पे हमें ट्रेनर्स मिलते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं हम जैसे नीवोपा के ट्रिप पे स्पेन पे भी गए, वहाँ पे देर एटलीस्ट 10 पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज एंड देर ऑल टॉप CEO मेंबर्स एंड दे सेड मैम हमें जहाँ पे दिक्कत आती है हम आपकी वीडियो देख लेते हैं। फिर कहते हैं मैम जहाँ पे हमें दिक्कत आती है हम आपकी जो वीडियो है वो क्लाइंट को भेज देते हैं, और कई बार क्लाइंट ये कहता है अरे वाह बड़ा अच्छा समझा दिया हम इन्हीं से ले लें क्या। एंड देन ऑब्वियसली अपना बिजनेस वहीं से होता है, बट आई एम जस्ट एडिंग दैट अपना अपार्ट फ्रॉम व्हाट शी इज इन फ्रंट शी डज lot many things at the back which makes the entire Haripatti family entire, and today as you mentioned the 1200 policies, more than 5,000 people who have relied her trust on her, and not only in Rajouri, not only in Delhi, not only in India, not only in Asia, not only in the entire world, हर जगह पे अपना there are people who call, and उसका एक नुकसान भी है क्योंकि कई बार रात को 2 बजे कॉल बजती है, 2 बजे से बजती है, and she takes all the calls। नींद मेरी खराब होती है बिकॉज मेरी नींद थोड़ी कच्ची है। सही बोला मैंने? बिल्कुल। एक आता है कि अचानक कोई US में बैठे उसको याद आ गया अरे मैम आपने बोला था अपना पॉलिसी के बारे में ये हो जाएगा, तो गुरलीन कहती है कि मैम सर कल सुबह बात कर लेंगे क्या। एक और रीजन है उनका कॉल उठाने का, बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉल फ्रॉम समवन हु इज इन द हॉस्पिटल इज वेरी हाई। शायद वो 10 में से 1 कॉल होगी, लेकिन वो 1 कॉल सबसे इंपॉर्टेंट होगी उस इंसान के लिए जो उस प्रॉब्लम में होगा उस टाइम, जिसको उस टाइम समझना है कि मैम मैं इस टाइम प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, हाउ डू आई गेट माई इशू रिजॉल्व। People not only call her for her policy कि मैम हमारी पॉलिसी का कार्ड दे दो, लोग अस्पताल में होंगे तो कॉल आएगा मैम मेरा ना आधार मेरी जेब में नहीं है, मेरे आधार की कॉपी दे दो क्या मुझे। And she has a system, everything is so well indexed in place and everything is in cloud कि रात को 2 बजे भी she takes a minute to find out the client's आधार card and send it to him or her, even though it is not her responsibility. So I think I would just say one thing, thank you Gurleen for doing what you do, and I think what she has taught me so many things in the last 21 years now। तो 20 साल की हरिपत्ती है, 21 साल का हमारा रिलेशन है, एंड गुरलीन जो सिखाती है बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दैट इज व्हाट शी डज। ये मैंने ट्रेन किया था अच्छा बोलने के लिए मेरे लिए ना, 21 साल में इतना ट्रेन तो कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
तो एक काम करें, खाने का बोलो। सौम्या जी, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। एक और चीज अपना, वी हैव वंडरफुल रोहित भाई क्रिएटिंग द एंटायर एसेंस ऑफ द एंटायर इवेंट ऑन हिज फ्रेम, क्या कहेंगे, मेरे तो आंखों में आंसू आए हुए इस टाइम, ऑन द कैनवस। Do have a look, it is beautiful. Do take a picture when you go back. Obviously we'll also send you a picture on newsletter. Oh, ये देखिए, you need to just see this. ये जब पूरा इवेंट हो रहा था, हर चीज लिखी जा रही थी, बनाई जा रही थी, और अपना इसमें कहता ना वो पूरी निचोड़ है पूरे के पूरे इवेंट का। थैंक यू रोहित भाई, थैंक्स अ लॉट। एंड रोहित भाई, एक बार आप आएंगे सर? If you want to see the amazing work he does, you can check your account, please. Okay. Well, thank you so much. So I remember when Mr. Tikku asked me to come and do something, and I was traveling that time, so I couldn't reply to him. And then I remember, oh, I have to do this for him. I called him yesterday, and I'm like, hey, are we still doing this? And he's like, if you want. I said, I actually love what you do, and that's the only reason I'll probably come and do it for you. So that was the only reason I came, and I also got to know about Gurleen's work. It's just wonderful to all the information that I've heard. I think I've become more financially, better and more literate being here and listening to all the amazing sessions. We'll share this as a digital copy, so it'll get to you. You can just look at it. It will remind you of all the sessions and things we talked about. I have a handle called Doodle Project on Instagram. So my startup is about doodling. We just capture whatever information we get around us. So do check it out, and my name is Rohit Soni. Thank you so much. Thank you, bhai. Thank you. And कैसा लगा आपको नुक्कड़ नाटक? Though it was a bit unique, we tried to add some messages because हमारी जिंदगी का, गुलीन मेरी हरी पत्ती का तो नहीं, बट हमारी जिंदगी के कुछ असूल है, जिनमें से एक असूल है कि बात करने से बात बनती है, दूसरा असूल है कि पूछने में क्या जाता है, तीसरा असूल है कीप वॉकिंग, जिसका मतलब है करते चलो, डू मोर रादर देन टॉकिंग मोर। एक और असूल है कि ट्रैवल लाइट, विच इज दिमाग को खाली रखो। लेकिन जिस असूल के बारे में बात मैं करना चाहता हूँ वो असूल है कि लाइफ में थोड़ी पागलपंती भी जरूरी है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू आस्क आवरसेल्फ कुछ करने से पहले कि हम इसमें पागलपंती क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्या कर रहे हैं, करते हैं। तो कई बार हम अपना पिज्जा खाते हो, साथ में अपना हल्दीराम की भुजिया भी खा लेते हैं। सही, बड़ी टेस्ट वेल डू अपना हैव इट एड्स दैट क्रंच। तो जब हम सोचे कि अगर पागलपंती क्या कर सकते हैं, तो वी डिसाइडेड कि कुछ अलग करते हैं। नुक्कड़ नाटक केम अप। वी हैव एन एबल टीम हु डज द अमेजिंग वर्क। आदित्य जी, वुड यू वांट टू जस्ट कम ऑन द स्टेज प्लीज? Also big round of applause for Aditi ji. She's the one who managed the entire event with Gurleen. She's the one who is on the social media, keep doing the work. Everyone is great, but इस इवेंट में और अपना सारा जो YouTube देखते हो, आप Instagram देखते हो, उसमें अदिति जी का बहुत बड़ा हाथ है। Do you want to say something, ma'am, please? Just thank you so much, and I hope you all liked the event and enjoyed it. And that's it from my side. Enjoy the dinner. Like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to follow us on Instagram. Spoken like a true social media star. Thank you very much, ji. And Soumya ji, thank you very much for taking the evening wonderfully ahead. Every bit was amazing. बहुत शुक्रिया। Soumya ji, मेरी आज से कितने 12 साल हो गए होंगे हम दोस्त हैं। इनके शब्दों में, इनकी आवाज में, इनकी बातों में बहुत बड़ा जादू है। हर और ये वो करती हैं जो हम सारे सब चाहते हैं कि किस दिन दिल्ली की गंदी हवा से दूर चल के पहाड़ों में रह ले। 5 साल पहले यही इन्होंने किया। यहाँ से दिल्ली के विकासपुरी से उतर के चली गई बीर, वहां पे एक अपना आशियान बनाया और आज वो आशियान काफी बड़ा हो चुका है और उस आशियान में काफी लोग आते जाते रहते हैं। सो अगर आप कभी बीर का प्लान कर रहे हो तो इनका एक बढ़िया सा Airbnb, I'll allow her to speak on that. I'll request her to speak on that. और वहां पर आपको सिर्फ रहने की जगह नहीं मिलेगी, वहां पे ऐसे कई कलाकार दोस्त हैं जो इनके घर में हमेशा आते रहते हैं, महफिल जमाते रहते हैं। कभी शेरो शायरी होती है तो कभी कविता होती है, कभी गाना बजाना होता है तो कभी लिखना लिखाना होता है। सो हम एक काम करते हैं, हैंड ओवर द माइक टू यू एंड जो कहना चाहे कहिएगा, लेकिन जाते हुए हमको कुछ अपनी सुरीली आवाज से अवगत करा के जाइएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं माइक छोड़ रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है?
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल है कहीं से बार बार, जीना इसी का नाम है मिजाज में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सेकंड पैराग्राफ भी कर लेते हैं, then we'll call it a day because वैसे माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। Thank you so much. Thank you so much fun with being with all of you and see you outside. Go with some food. Thank you from all of us. एक बार रोयल्टी जस्ट 1 मिनट मैं बोलूं थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर एवरीथिंग। बिलीव मी, जब हम लिस्ट बनाने बैठे थे, लिस्ट 600 लोगों की बन गई थी एंड हम 600 लोगों को बुलाना चाहते थे। फिर देखा कि 600 लोगों को बुलाएंगे तो हमारा जो बिल है होटल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा सर उनको बुलाएंगे जो हमारे दिल के करीब हैं। बाकी भी दिल के करीब है, लेकिन उनमें से आप में से काफ़ी ऐसे हैं जो परिवार का हिस्सा हैं। जैसे अपना अगर अवार्ड भी हुए तो ईच वन ऑफ यू डिजर्व एन अवार्ड, लेकिन हमने उसके लिए भी क्राइटेरिया रख दिया था कि एटलीस्ट वो लोग हों जो अपना एटलीस्ट जो 10, 15, 20 साल से हमारे साथ हैं। जबकि आप में से काफ़ी ऐसे हैं 7 साल से 8 साल से डूइंग ग्रेट वर्क। सो इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट स्पेशल, यू आर वेरी 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 स्पेशल टू हरीपत्ती टीम, गुरलीन, एंड उनके करीब हो तो मेरे भी करीब हो आप। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपका थैंक यू। एंड खाना तैयार है, खाना मिलके खाते हैं। ऑल्सो अपना बाहर माई टीम, दीक्षिता जी एक बार आएंगे आप? दीक्षिता जी विल बी देयर। इफ़ यू हैव एनी टेस्टिमोनियल्स टू गिव हर, शी वुड वांट टू रिकॉर्ड इट। चाहे 2 शब्द कहो या चाहे अपना 100 शब्द हो, प्लीज़ बता के जाइएगा। एंड आई सी सो मेनी फैमिली मेम्बर्स ओवर हियर, अपना यहाँ पे हर जगह पे। थैंक यू आप सबका फॉर एवरीथिंग। जो आपने बोला वही डिट्टो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।